Good morning, student. I am Rajendra Simori from the Gyan Manjari Vidyapeeth Mova. Today in class 10th, today is our lecture number 48 in new unit. So today we will start a new unit, unit number 4, quadratic equation. Okay. Why I am choosing this kinds of the unit? Because you have to all the fundamental of algebraic identities and you all are having the enough concepts regarding the algebra. So this is a very easy going concepts of this quadratic equation. So let us start with this particular equations, because of we all know that how can we identify the quadratic equations. We all know that if any polynomial is having degree 2, then we can say that it's a quadratic equation. So here there are number of different situations is raised here. So we are not able to think only for the degrees, but sometimes we are also using some standard forms. So let us start with this chapter, this unit quadratic equation with the standard form. So let us move on it. First of all, in this quadratic equation, that is unit number 4, and this is a lecture number 48. Now in this unit we have to using this quadratic equations. This is the name of chapter this, and we are using here the one standard forms of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0, isn't it? Now what do you understand about this? Is also we earlier studied in the unit number 3, but that is also a part of the unit number 2 also. So we all know that this is the form of the quadratic equation having the degree 2. तो हम ऐसा तो कह सकते हैं कि हमने ये पहले भी सीख चुके हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अभी हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम याद रख ले, देन अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 50-60% पोर्शन है वो खत्म हो जाता है. कैसे खत्म हो जाता है? इसका मतलब ऐसे नहीं कि ये मैंने आपके ऊपर एक इक्वेशन रख दिया और ये इक्वेशन याद रख लो, देन योर यूनिट इज कंप्लीटेड. दैट्स वे आई नेवर सेड लाइक दैट. बट सपोज यू नो वेरी वेल दैट ax square plus bx plus c is equal to 0. That is a standard form of quadratic equation, and one condition over there, that is a never equal 0. इसका मतलब है कि ये कभी 0 नहीं है. यदि ये 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही. मतलब हमें याद रखना है ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is never equal to 0. अब इसी के ऊपर हम आज से एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट्स अ very easy things and fundamentally you are very clear about the quadratic equation, so there is no need to add any kind of the theory. Also I sent one PDF for the keynotes with this video, so you can also directly see from that video. Okay, so that PDF you add in the front of your fair book of this chapter. आपके यूनिट का जहां से आप बिगिनिंग कर रहे हैं वहां पे आज जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूं वो पीडीएफ में से की नोट्स उसमें लिख लेना. की नोट्स के बाद ही आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं. सो लेट अस मूव विदाउट वेस्टिंग, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इजी है और ये हमारे लिए 10th क्लास में बहुत सारे मार्क्स देने वाला चैप्टर है. तो इसमें जितना हम अच्छी तरह से उसके ऊपर एफर्ट लगाएंगे तो ये दूसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, isn't it? So let us move on it. First one is the example. Check whether the following are quadratic equation or not. ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है. जनरली इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें से पहली कैटेगरी के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे. उसमें ऐसा है कि आपको ये बताना होता है कि ये नीचे दिए गए पार्ट्स में से इक्वेशन के ऊपर से आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ पे 1x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. मतलब हियर वी हैव टू गिवन टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. अब दोनों साइड्स को हमें कंसीडर करना है और हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. ओके,
So let us start of it. First of all, from left hand side we have to start. Left hand side is equal to, here given x minus 2 का square plus 1. Only these things is explaining over here. तो अभी हमें पता है कि x minus 2 का स्क्वायर यानी x minus y का स्क्वायर या a minus b का स्क्वायर, जैसे हम फैक्टर्स आगे हम करते थे वैसे ही इसका हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. So why we are not going for that way? So let us start on it. First we have to make that how can we are using that. Suppose हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है? नहीं. हमें ये बताना है कि दो चीज हमें दी गई है, उसका हम ऐसे सिंप्लीफिकेशन करें कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता है, वही हमें चेक करना है. इज इट क्लियर? तो लेट अस मूव ऑन इट. हाउ कैन वी सॉल्व आउट दिस थिंग्स? अब x स्क्वायर माइनस 2 है तो इसको हम ऐसे फैक्टर्स की पोजीशंस में देखें तो ये x स्क्वायर हो गया. ये माइनस 2x को कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे. 2 इंटू एक्स इंटू 2 होता है क्योंकि x माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर. हम ऐसे आइडेंटिटी को याद कर ले, शायद आपको याद हो ना हो. तो इस आइडेंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हम रखते थे ना. तो वही सेम आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 मतलब 2 बीच में है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यानी 4. देन वी हैव टू यूज 2 इंटू 2 हो गया 4 एंड देन वी हैव टू यूज इन हियर 4x. ये सीधा मल्टीप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं. सो माइनस 4x हो गया, 2 इंटू 2 का 4 हो गया 4x एंड देन लास्ट वन वी हैव टू यूजिंग द 4. अब बाद में हमारे यहाँ पे प्लस 1 एज इट इज. तो हमारा एक्चुअल में इसको हम सिंप्लीफाइड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 मतलब वी हैव टू यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हो जाता है. सिमिलर वे से हम यदि ये 2x माइनस 3 को कंसीडर करें तो ये 2x माइनस 3 को कैसे कंसीडर करेंगे? क्योंकि ये 2x माइनस 3 उसके सामने ही है. तो एक साइड हमारी ऐसी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और राइट हैंड साइड की तरफ हमारा 2x माइनस 3 एज इट इज है ही. अब आप देख सकते हो कि इसको 4x को इस साइड ले जाते हैं और 5 को उस साइड ले जाते हैं या सभी को इस साइड लेते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको इस साइड लेंगे माइनस 2x प्लस 5 इस साइड है ही प्लस 3 देन इज इक्वल टू 0. तो इसकी प्रोसीजर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म आए उसको डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ यदि आप इसको कंपेयर करने की प्रोसीजर करेंगे तो आपको इक्वली पता चल ही जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 मतलब पहला फॉर्म एक्स स्क्वायर है, यस. दूसरा bx के फॉर्म में है, यस. लास्ट वन कांस्टेंट के फॉर्म में है, यस. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हैविंग द डिग्री 2 इज देयर. यहाँ पे आप देख लो तो बाकी कुछ नहीं देखने की जरूरत है ही नहीं. आप वैसे ही कह सकते हैं कि नो इट्स एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही. तो इस तरह से हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अभी तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन बताया कि क्या करना है. दोनों साइड में से एक साइड जिसका मैंने फैक्टर निकाल सकता है, बाद में दोनों साइड ऐसे ही नीचे उतारे तो मुझे ऐसा मिला कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड वी कैन से दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस तरह से हमें इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है. इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट एंड इट्स अ वेरी इजी यूनिट.
so we can going very fast on these concepts, so we can directly, but main thing is that whatever the things you feel like very easy, you have to do more practice on it. याद रखो जो यूनिट आपको इजी लगता है, उसके ऊपर एफर्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं लगती, वही यूनिट में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स का नुकसान हो सकता है यदि यू हैव टू गो फॉर द ओवर कॉन्फिडेंस. सो वी हैव टू गो वेरी स्टेडी. हम कहते हैं ना कि हम रैबिट की तरह चलेंगे, कि बड़े शान से चलेंगे. अब हम जितना चल सकते हैं, हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी है वो दिखानी है मार्च के एग्जाम में, हमारी कैपेसिटी एग्जाम में दिखानी है. तब तक हम ऐसे स्टेडी चलेंगे कि कुछ भी हमारे सामने से रह न जाए, कोई पॉइंट्स हमारे विजन के बाहर न रह जाए, ये चीज भी साथ में देखनी है. और देन आफ्टर वी गो फॉर द स्टडी. यदि आप स्टडी चलते रहोगे, यू गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन द मैथमेटिक्स. ओके, सो आई गिव यू टू द टाइम फॉर रिफर दिस, देन आफ्टर वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. So let us move on to the next example. I hope so that the first example is understood very easily. So second one examples just we have to take. Okay, first of all, here given that x into x plus 1 in the bracket plus 8 is equal to x plus 2 x minus 2. Now we can also going for same procedure that we already done into the example 1. X into x plus 1 plus 8, that is the left hand side and the right hand side. Both side, if you wish, then both side you have to comparatively with the same time. आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग करो. आप एक साथ में भी आपका जितनी न्यूमेरिकल एबिलिटीज और फैक्टर्स को डिसाइड करने की कैपेबिलिटी आप में जितनी ज्यादा होती है, वैसे ही आप एक साथ में कर सकते हो. देयर इज नथिंग टू हार्ड इनसाइड. ओके, सो सेम वे वी आर यूजिंग दैट. वी हैव टू यूज हियर x. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है. x इंटू एक्स प्लस 1. हमें तो माइंड में यही याद रखना है कि लास्ट में ax square plus bx plus c is equal to 0 के फॉर्म में आ जाना चाहिए. ओके, सो लेट अस मूव ऑन इट. x into x plus 1 यानी x into x क्या होता है, x square प्लस x का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, दैट्स व्हाई वी गॉट x, एंड प्लस 8 एज इट इज वी हैव टू पुट. तो इसका सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बचता है x square plus x plus 8. सिमिलर वे वी आर गोइंग फॉर हियर x plus 2 and x minus 2. अब आप ध्यान से देखें तो ये इसी का फैक्टर है. आपको याद हो तो x minus 4 को हम कंसीडर करें तो x square minus 4 को हम कंसीडर करें तो ये x square minus 4 का फैक्टर है x minus 2 और x plus 2. आप देख सकते हो यहाँ पे. तो हम डायरेक्टली उसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हैं ना कि x square minus 4. Why? Because of it's a factor of x square minus 2 का स्क्वायर. ऐसा हो गया. x square minus 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम ऐसे कंसीडर करें तो x minus 2 x plus 2. तो ये हमारे दोनों फैक्टर यहाँ पे है. इसके मतलब हम x square minus 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. x square minus 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4. That's why we directly x square minus 4. So let us move on it. X square plus x plus 8 ये सभी चीज इस तरफ ले आते हैं हम, यानी हमारे पास x square बचता है, फिर x ऐसे ही प्लस 8 माइनस x square प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हम रख दें. अब आप देख सकते हो कि x square यहाँ पे तो x square ही कट हो जाता है, क्योंकि दोनों एक प्लस है और एक माइनस है. तो हमारे पास बचता है क्या है, x, और 8 प्लस 4 क्या होता है, 12 इज इक्वल टू 0. अब आप देखो ये किसी भी एंगल से
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें तो ये होता है? नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग्स दैट ऑलरेडी वी चेक्ड फॉर आइदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, obviously our answer is it's not in the form of quadratic equation because it can't be compared with ax square plus bx plus c is equal to 0. That's why it's not an quadratic equation. It's not a quadratic equation. समझ में आ गया? तो इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है और इसी क्वेश्चंस को हम समझने में थोड़ी सी गलती यदि कर देते हैं, कभी हम नहीं समझते कि इसका फैक्टर, ये सब चीज आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्ट्राइक हो जाना चाहिए अभी 10th में हो आप, इसीलिए कि x प्लस 2 और x माइनस 2 किसके फैक्टर है ये आपको याद रह जाना चाहिए। और यदि ये याद नहीं आता है तो आप उसको, इसके लिए सभी 9th का थोड़ा बहुत अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो सेकंड चैप्टर्स में यूज की थी हमने, उस चैप्टर का थोड़ा बहुत रेफरेंस भी लिया करो, थोड़ी प्रैक्टिस किया करो। अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक साथ एक पेज में लिख लो। ये सब प्रोसीजर करने से क्या होता है कि हम ये सब सम्स 1 मार्क्स में आते हैं तो 1 मार्क्स हमारा कहीं कट ना हो जाए, 2 मार्क्स में मैक्सिमम आते तो 2 मार्क्स में हमारे मार्क्स कहीं कटे ना कटे, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, isn't it? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम हमारे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट यू ऑल आर write this portion. So let us move on to the first exercise of this unit, 4.1. Exercise 4.1 का पहला क्वेश्चन, जो अभी हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व करे वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चंस का सभी रोमन्स हमें करना है। फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सजेस्टिंग दैट चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें ये बताना है कि इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ओके, सो लेट अस मूव ऑन विद फर्स्ट रोमन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट रोमन यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। नाउ वी हैव टू यूजिंग दैट x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब वी हैव टू यूज x प्लस y का स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी हम यूज करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो गए। अब मुझे उसके बारे में आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपको पता है। नहीं पता है तो मैं साइड में फिर से बता देता हूं कि x प्लस y का स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करें तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की और कुछ नहीं है। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, एंड सेकंड वन, इसको तो सीधा सा सिंप्लीफाइड करना, 2x माइनस 3 2 6 हो गया। अब 2 स्टेप में ही ये सभी आपको नजर आएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज 2x एज इट इज प्लस 1, ये सभी पूरी टर्म्स को जो राइट हैंड साइड के है वो यहाँ पे ले आते हैं माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, सो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कट हो सकता है। यस ऑब्वियसली प्लस 2x माइनस 2x यहाँ पे कट हो गया तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, मतलब हमारे पास रहता है प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे ax² प्लस bx प्लस c के साथ मेल आ जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म है हमारा वो क्या हो गया यहाँ पे 2 यानी डिग्री 2, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि x² प्लस 7 इज द पोलिनोमियल्स, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि इट्स हैविंग द 2 डिग्रीज। उसकी कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल्स तो है ही। सो देयरफॉर आवर x प्लस 1 square is equal to 2x minus 3 is a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है वो पता चल गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज दैट x²। अब ax² प्लस bx प्लस c के साथ आप मेल कर लो तो इसका फॉर्म्स ऐसे भी हो जाएगा ना। यदि आप कंपेयर करना चाहे तो क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमें बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यदि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, वो तो सीधा सा है। क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से? बिकॉज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स हैविंग द 2 डिग्रीज वी कैन से दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। और दूसरी तरह से आप देखो तो ax² प्लस bx स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ इसको कंपेयर कर दो तो x² हो गया। अब x की वैल्यू, x वाला टर्म्स इसमें नहीं है तो हम उसको लगा सकते हैं ना 0x, ऐसा लगा सकते हैं ना। 0 इंटू x क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, और c की जगह पे तो 7 है ही, तो कंपेयर हो गया ये पूरा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लो, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बड़ा इजी चैप्टर है और इजी थिंग्स है, यू कैन डायरेक्टली से दैट। ओके, तो ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चंस को ही मैं आज कंसीडर कर रहा हूँ। एक ही मेथड आपको मैंने आज बताई है और अगले लेक्चर से हम कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेथड्स को यूज करेंगे। तो टुडे वी हैव टू कंक्लूड। बिफोर दैट आई गिव यू टू द होमवर्क। इन दिस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड रोमन से लेके बाकी सभी रोमन्स को आज कंप्लीट करने है। 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद 8 रोमन्स यहाँ पे कंसीडर हो रहे हैं। तो पूरे 8 रोमन्स 2 3 4 5 6 7 and 8। How many Romans of exercise number exercise number 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट रोमन और 2 एग्जांपल्स आज हमने सॉल्व किए। उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट कर देना है होमवर्क। इज इट क्लियर? आई होप सो दैट all students are really feel that it's a very easy concepts and it's a very easy chapters or unit, so you can do very sincerely on it and do more practice even though it's a very easy। okay? यदि ये बड़ा इजी चीज है फिर भी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके उसका सॉल्यूशन निकालना। okay? I hope so that if you having any kind of the doubt you can directly ask me, and continuously you have to work all the keynotes। okay? So today I also sent in the keynotes, so that keynotes of these chapters also send with your homework। यानी एक 4 5 6 and 7 sums and 1 keynotes from the PDF, both things you have to send in today's homework। is it clear? Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture। thank you very much।